Hello students of class 4. Today I am going to teach you EVS chapter 16, that is a busy month. Children, previous video में हम लोगों ने जाना था डव बर्ड के बारे में और इंडियन रॉबिन और क्रो के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कोयल के बारे में। So let's start. You know that the koel sings sweetly. Do you know that this bird does not make its own nest? It lays its egg in a crow's nest. The crow hatches them along with its own eggs. तुम जानते हो कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला बनाती नहीं है। वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। There is a small tree nearby. It has a nest hanging from its branch. Birds are so wonderfully different. The crow builds its nest high up on a tree. The dove makes its nest among the thorns of a cactus plant or a mehdi hedge. The sparrow can be found in and around our own house. It makes its nest anywhere, on top of a cupboard, behind a mirror, on a ledge. Pigeons also make their nests like this. Often, they make nests in old or deserted building. The barbet or coppersmith bird can be heard in the summer with its tuk 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 call. It makes its nest in a hole in a tree trunk, and the tailor bird uses its sharp beak to stitch together two leaves on a bush. It lays its eggs in the fold of the leaf that it has made. This is its nest. नज़दीकी में एक छोटा सा पेड़ उसी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी के मेड़ में। गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है। अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है। पुराना मकान या खंडरों में बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक 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 करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा रखते हैं। दर्जनी चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा वह अपनी नोकीली चोंचों से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही है उसका घोंसला। The sunbird makes a nest that hangs from the branch of a small tree or a bush. The same evening we saw a sunbird's nest. Can you guess what its nest is made of? The nest has hair, grass, thin twigs, dry leaves, cotton wool, beads or tree bark, pieces of cloth, rags, and even spiders' cobwebs. When I looked through the binocular, I could see a chick in the nest. It was sitting near the small opening in the nest. It was waiting for its mother to bring some food. What else can it do? Just sit and sleep. शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्करखोरा में का घोंसला देखा। क्या तुम जानते हो यह घोंसला किन चीज़ों से बनता है? घोंसलों में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों की चिथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं।
मैंने दूरबीन से देखा, उस घोंसले में एक बच्चा भी था। घोंसले की एक तरफ छोटा सा छेद था, वहीं बच्चा बैठा था अपनी माँ और खाने के इंतज़ार में। उसको और काम भी क्या होगा, खाना और सोना। Do you know about the weaver birds? The male weaver birds make beautiful nests. The female looks at all the nests and chooses the one that she likes the best and decides in which to lay her eggs. क्या तुम्हें वीवर पक्षी के बारे में यह जानते हो? सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती हैं, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडा देती हैं। All the birds are so busy these days. Making a nest and laying the eggs is only the first step. It is a difficult task to raise the young ones in the nest which had been made with so much effort. Birds have many enemies, human and other animals too. Crows and squirrels, cat and rats, all of them wait for a chances to steal the eggs. Many times they even break the nest to keep oneself safe from danger, to find food, make a nest, hatch and eggs, and raise the chicks safely. All these are tests for every bird, and see how the birds still sing and joy and spread their wings and fly freely. आजकल सब पक्षी बहुत व्यस्त हैं। घोंसले बनाने और अंडा देना या तो पहला कदम है। बड़ी मेहनत से बनाए गए घोंसले में बच्चों को ठीक से पाल कर बड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है। पक्षियों के कई दुश्मन हैं, मनुष्य और दूसरे जानवर भी। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। कई बार घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। इन सब से बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चों को पालकर बड़ा करना, यह हर एक पक्षी की परीक्षा है। फिर भी ये खुलकर गाते हैं और पंख फैलाकर उड़ते रहते हैं। So that's is all for now. सलाम, ब्लेसिंग फ्रॉम योर गुजी भाई। अच्छा तो सलाम, तुम्हारे गिजू भाई का आशीर्वाद। ये था स्टोरी जो गिजू भाई ने आप बच्चों के लिए लिखा था और बहुत सारे चिड़ियों के बारे में बताया, जैसे आपको बताया सनबर्ड के बारे में, डव के बारे में और कोयल के बारे में, बर्बेट के बारे में, क्रो के बारे में और भी चिड़ियों के बारे में हम लोगों ने जाना। टेलर बर्ड्स के बारे में, उनके घोंसले के बारे में, उनकी जीने के अंदाज़ हम लोगों ने जाना। उन लोगों को कितना सफ़र करना पड़ता है अपने बच्चों को पालने के लिए और कैसा उनका नेस्ट होता है, ये सब हम लोग जाने। अब हम लोग जानेंगे यू हैव सीन हाउ बर्ड्स, यहाँ से बर्ड्स यूज़ द नेस्ट only to lay their eggs. After the eggs have hatched and the chicks have grown, they leave the nest. Imagine how it would be if we also had to leave our homes as soon as we learned how to walk and talk. After they leave their nest, different kind of birds live at different places, some on trees, some near or on water, and some on land. Other animals also have different places where they live, on land, under the ground, in water, on trees. पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। सोचो कैसा होता है अगर हमें भी अपना घर छोड़कर कहीं चले जाना पड़ता जब हम चलने बोलने लगें। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, ज़मीन पर, पानी में। दूसरे जानवर भी अलग अलग जगहों पर रहते हैं, कुछ ज़मीन पर तो कुछ ज़मीन के नीचे, तो कुछ पेड़ों पर तो कुछ पानी में। तो बच्चों, हम लोगों ने चिड़ियों के साथ साथ और भी जानवर के बारे में पढ़ा और जाना कि कुछ जानवर कहाँ कहाँ रहते हैं। कुछ ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ पेड़ों पर रहते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Stay tuned for upcoming video. God bless you.